चैनल द टेस्टिंग एकेडमी. So, friends, आज मैं today I am gonna tell you like what kind of profile in automation testing, and what will be the salary range for a automation test manager, automation for automation engineer, and what kind of profile in the automation testing as compared to the manual testing, and what will be the salary. And this is my experience right now. Currently I am on 5 year experience, and what I am looking in right now in industry as well, and in my company as well, I will tell you. I am not I will not give you any, I will not give you in this video, I will not give you any false information or any kind of information. I will give you the genuine information, because right now I am seeing this in my company, in my company, and as well as in different companies as well. Like I have around a 5 year experience, so at least I have a like 2 3 companies. So I am giving you the genuine, I will give you the genuine information. And what kind of profile. So first, mainly the question is, what are the highest paying job in test automation, and what is the typical salary range of automation professional. So first of all, I will tell you, like, in automation generally, what kind of profile is there. So total 3 profile is there mainly. The first one is a automation test manager. Like, this is the first one, automation test manager. Second, we have a automation architecture. And third, we have a test automation engineer specialist. So the first one is a automation test manager. So in this profile, generally, if you have a good exposure of automation, so you can easily if you have a good exposure and you have a working knowledge, प्रॉपर नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको ये ऑटोमेशन टेस्ट मैनेजर की प्रोफाइल इजीली मिल सकती है. बट और इसका जो वर्क होता है वो अराउंड ये होता है, इसमें एटलीस्ट 10+ ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है. इसमें जो पैकेज रहता है वो एटलीस्ट 30+ आपको इजीली मिल जाता है. और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली इन माई कंपनी, रिसेंटली automation test manager is there, who is around a 13 experience, who have a 13+ year 10+ year experience, and he has around a 30 LPA, more than 30 LPA package is there. So that's why I am saying you. So in this role, आपको what will be the your profile and what kind of work you have to do. तो आपको automation testing process रहती है. You have to look into it, automation testing process. मैनेज द टीम, आपको टीम को मैनेज करना होता है, एंड इंश्योर द इफिशिएंट टेस्ट ऑटोमेशन इम्प्लीमेंटेशन. सो ये जनरली इस प्रोफाइल में आपको वर्क करना होता है. लेट्स से आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग टीम डिफरेंट होती है और मैनुअल टेस्टिंग टीम डिफरेंट होती है. सो ऑटोमेशन टेस्टिंग टीम को मैनेज करना, इट्स रियली डिफिकल्ट, बिकॉज अराउंड 4 to 5 ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट रहते हैं जो कि उनको मैनेज करना, उनको गाइड करना प्रॉपर. सो यही एक ऑटोमेशन टेस्ट मैनेजर का वर्क होता है. और यदि आपके पास काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है और टेक्निकल एक्सपीरियंस है ऑटोमेशन का, आप इजीली ये प्रोफाइल ले सकते हैं, आप स्विच भी कर सकते हैं यदि आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो. इसके बाद सेकेंड है हमारे पास ऑटोमेशन आर्किटेक्चर. ऑटोमेशन आर्किटेक्चर में आपके पास अराउंड 7 to 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए. 7 to 10 ईयर एक मिनिमम में एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. समटाइम ये ज़्यादा भी होता है. मे बी आप ऑटोमेशन जो फर्स्ट प्रोफाइल है टेस्ट मैनेजर के लिए, वो आप 13 भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है एक्सपीरियंस. ये मैंने एक हाई लेवल डिजिट ली है. सेकेंड है हमारे पास ऑटोमेशन आर्किटेक्चर. इसमें अराउंड आपके पास 7 to 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए. एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस, तो 7 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. इसमें जो आपके पैकेज रहता है वो 15 से 25 LPA ईजिली आपको मिल जाता है. यदि आपको अच्छा स्क्रिप्ट का नॉलेज है, आपको काफ़ी मतलब एक्सपोजर है कि कैसे डेवलप एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलप करना है, क्या क्या टूल्स लगते हैं, एक POC काइंड ऑफ आपको करना होता है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टेस्ट मैनेजर. कि आप लेट्स से आपके पास, लेट्स से इफ़ यू हैव एनी न्यू प्रोजेक्ट, तो आप व्हाट काइंड ऑफ टूल्स यू कैन रेफर, व्हाट काइंड. सो आपको एक POC करनी होती है इसमें, और फिर आपको एक मल्टीपल POCs करके आपको एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलप करना होता है.
फ्रेमवर्क डेवलप हो गया यहाँ पे, लेट्स से टेस्ट एनजी हो गया, कुकुम्बर हो गया, या सेलिनियम हो गया, या अदर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को आपको एनालाइज करना होता है, और एनालाइज करने के बाद आपको एक फ्रेमवर्क डेवलप करना होता है। तो फ्रेमवर्क डेवलप के लिए आपको इसमें कोडिंग रिक्वायर्ड रहती है, जावा कोडिंग इंपॉर्टेंट रहती है। डिपेंड करता है आपकी कंपनी कौन सी लैंग्वेज प्रेफर कर रही है, पाइथन है, जावा है, और टूल्स कौन कौन से प्रेफर कर रही है। सो आपका मेनली इस प्रोफाइल में वर्क ये रहता है कि आपको मल्टीपल पीओसीज करनी होती है, और आपको एक फ्रेमवर्क डेवलप करना होता है ताकि वो टीम आपका यूज कर सके। और इसमें जो एक्सपीरियंस अराउंड 7 to 10 ईयर, और मेनली 10+ ईयर भी, समटाइम इसमें 10+ ईयर भी लोग काम करते हैं, समटाइम 10 से कम लोग भी। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपोजर है या कितना नॉलेज है रियल टाइम। इसके बाद जो लास्ट प्रोफाइल है, जो हमारे पास थर्ड प्रोफाइल है, वो है टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर और स्पेशलिस्ट। करेंटली मैं इसी प्रोफाइल में वर्क कर रहा हूँ। मुझे भी अराउंड 3 to 6 ईयर के बीच का ही एक्सपीरियंस है, 5 ईयर का, और पैकेज रेंज भी अराउंड इतना 10 to 15 LPA ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। डिपेंड करता है, यदि आपके पास आर्किटेक्चर का, सो पैकेज अराउंड 10 to 15 LPA ही रहता है। ये मैं रियल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। और इसमें आपको जनरली जो ऑटोमेशन आर्किटेक्चर ने फ्रेमवर्क डेवलप करके दिया है, उसको आपको मेंटेन करना है, उसको डेवलप करना है, और उसी को, उसका रिजल्ट एनालाइज करके आपको टीम को फॉरवर्ड करना है। लेजर डेवलपर्स को आपको फॉरवर्ड करना होता है, या आपको अपने मैनेजर्स को, ऑटोमेशन आर्किटेक्चर्स को, या आपके जो टेस्ट मैनेजर है या अपनी टीम है, उनको आपको रिपोर्ट, या फिर जो एक्सटेंट रिपोर्ट होते हैं, जो हम अपकमिंग लेक्चर्स में डेफिनेटली वी विल लर्न इन अपकमिंग लेक्चर्स। सो आपको वो रिपोर्ट थ्रू ईमेल्स, थ्रू CI/CD पाइपलाइन आपको शेयर करना होता है। तो ये मेनली दिस थ्री मेनली प्रोफाइल इन ऑटोमेशन। सो करेंटली मैं अभी इसी प्रोफाइल पे वर्क कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन इट प्रोफाइल, एंड मे बी इन फ्यूचर आई विल मूव इन दिस प्रोफाइल ऑटोमेशन आर्किटेक्चर आफ्टर 3 to 1 or 2 year. So यदि if you want to jump from manual testing to automation specialist, so generally this profile is suitable for you. So if you follow my lecture, so you will be easily uh, you will be easily you will be easily switch in this profile, like 3 to 6 year. Let's say if you have experience 2.5 year manual testing, so you can just follow my lectures, and you will be easily get this profile around 3 to 6 year experience, and you can demand 10 to 15 lakh LPA with product based company or any company, like if you have a good exposure. So if you like this video, please subscribe my channel. I will give you more lecture like that. Thank you.